सर माइक म्यूट है आपका। अभी कैसा है? अभी अभी ठीक है ना? आ रही यस आवाज सर। मेरी? हाँ सर। ओके ओके ओके। So, Assalamu alaikum and good afternoon to one and all present over here. Okay, and we are learning the third chapter, that is mobile networking, and in that particular chapter we have done few topics. In the mobile networking we have few topics like we have done the medium access control and motivation for specialized mac, and then afterward we have seen different issues like hidden terminal problem, exposed terminal problem, and then last one, near and far terminal problems. Okay, so these first two problems can be these issues can be resolved with the help of the multiple access technique, the new multiple access technique in the in the wireless network, and the name of this technique is MACA, that is multiple access with collision avoidance. Okay, so this MACA technique can be used to avoid any collision, can be used to avoid any packet loss in the wireless network. Okay, and after that we start with the 3.2, that is mobile IP. Okay, in mobile IP we have seen, let us move to the topic, that is mobile IP. I'm just repeating this so that we can make the environment, otherwise काफ़ी दिन हो गए लेक्चर को, so ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर से जाए. So mobile IP, we have started with this mobile IP, and then we came to know the situation that the situation was like we can use the internet in the home because it was the network was configured well in our home, and but we cannot use this particular internet connection outside of the home. So what we have to do? A lot of people brainstorm on particular this topic, on this particular topic, and they came up with multiple solution. So all the solution they have given was not working. So people's come up with multiple solution, quick solution 1 2 3 in this particular we have discussed already. Then few people's work on the solutions, and they came up with the proprietary system. Okay, one standard, one architecture to enable the mobility in the internet. Okay, so that the internet can be used anywhere in the location. Okay, whatever location in which they are providing the services. So it was the architecture, or we can say standard, or the proprietary system was finalized. Okay, and that system was called as the mobile IP. So आज mobile IP का ही कमाल है कि we can use the internet outside also in your any device, whatever in whatever device you want to use, you can use it. Okay, so if you are going outside in the bus, luxury car, traveling, so then we can use the internet anywhere. Okay, we can open the internet, we can access the different browsers also. So we have lot of advantages now with the help of mobile IP. Okay, so it was having few requirement like compatibility should be compatible with multiple browser, multiple application, multiple platform, and all that. Then the transparency, important information should not be visible to all the users. Okay, as we see that if you are calling to someone, then it will not tell you that we are connecting you from the base station this to base station this, then एमएससी से कनेक्ट किया, फिर एमएससी से आपका डेटाबेस सेव हुआ, फिर आपका नंबर चेक किया, आपका ऑथेंटिकेशन हुआ, आपका इनक्रिप्शन हुआ, आपकी वॉइस का इनक्रिप्शन हो रहा है. सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी revealed to you. Okay, then we have efficiency. The existing network must be efficient, and it should not be, we are not going to risk the particular existing system cause of the the new system, that is the mobile IP. So mobile IP की वजह से हमारा existing system बर्बाद नहीं होना चाहिए. And then scalability, we are having a number of devices, numerous devices. We are having numerous devices who are working. We are having numerous devices who are working outside. Okay, so I told you the concept of the mobile IP, that it can be now in the future every device, every home appliance is going to be IP enabled. Okay, if it is going to be the IP enabled, then you can use those particular appliances with the help of your mobile as a remote control. Okay, so a lot of things are there in that particular scalability. So we have to ready, we have to provide, and we have to give this mobile IP solution in such a way that number of peoples can be used at a time. Okay, तो scalable होना चाहिए, vast होना चाहिए. Okay,
Okay, then after that the last point is security. The last requirement was having the security, and you know about the security that it requires everywhere, and for each and every topic the last point is always the security. Okay. Okay, then we started with the goal. The goal of the mobile IP was, it can be summarized that we have to support the end system mobility, so that end system can use the internet outside the home also, while maintaining the scalability. Okay, it should support number of devices, efficiency, existing systems should not be at the risk, and compatibility should be compatible with all the platforms, all the application, all the network service provider and all that. Okay, in all respect with existing application and internet protocols. So ये हमारा गोल था मोबाइल आईपी का. देन वी केम अप विद द एंटिटीज एंड द टर्मिनोलॉजीज. दैट इज आपका मोबाइल नोड है. द यूजर हु वाज इन द initially who was in the home network, but after cause of some work he has now he has moved to the uh, network which is outside of the home network. ठीक है. So all the network which are outside of the home network will be called as the foreign network. Okay, so we have these few terms. आपका mobile node, okay, who is traveling from one location to another location. Then we have a correspondent node. The correspondent node is the one who is communicating with the mobile node. So जो communication partner है वो आपका CN है. Then home network is the network in which your mobile node was initially registered. Foreign network is the network in which your mobile node has moved now. Okay, just for few work और कुछ time के लिए आपका mobile node उसमें move हुआ है. So that's a foreign network. Your home network will be managed by the router, which is the home agent. Okay, HA. And your foreign network will be managed by your foreign agent, that is FA. And the address of this foreign agent will be the care of address, that is COA. Okay, so all these terms we discuss with the help of this diagram. ठीक है, बहुत सारा हम लोग ने यहाँ पर किया था. And after that, after the explanation of all these terms, we came up with the example in which we have seen the IP packet delivery, how the IP packet is delivered from the correspondent node to the mobile node. So it was the situation where your correspondent node wants to send the data, okay, or wants to communicate with the mobile node. Okay, so initially we started with this point. That is a correspondent node. Okay, so we started with the correspondent node. When correspondent node will send some information, send some data, so initially that packet will goes to the home network first. Okay, as you know, क्योंकि उसके घर पे ही जाएगा. अब उसको ये तो पता नहीं, हमारे करस्पॉन्डेंट नोड को तो ये पता नहीं है कि द मोबाइल नोड इज नॉट करंटली प्रेजेंट इन द होम नेटवर्क, इट इज करंटली घूमिंग हेयर एंड देयर. ओके, तो वो कहीं और घूम रहा है, तो उसको इसके बारे में पता नहीं है. सो योर पैकेट विल फर्स्ट बी रीच एट द होम नेटवर्क. तो होम नेटवर्क के बाहर आपका राउटर खड़ा रहेगा जो कि आपका होम एजेंट विच इज कनेक्टेड विथ योर होम नेटवर्क. ओके, so your home agent is having all the information about your home network, how many nodes are present, कौन कौन घर पर है, कौन कौन नहीं घर पर है, तो सब पता है आपके होम एजेंट को. so when your packet will first reach to the home agent with the source as the CN and destination as the MN. okay, जब पहुंचेगा तो देखेगा तो पता चला कि है नहीं, कहीं बाहर गया है भाई साहब. तो उसको पूछेगा भाई साहब कहाँ गए, तो वो बोलेगा कि अभी अभी तो है नहीं, लेकिन वो ये जगह पर गए. तो फिर क्या करेगा आपका होम एजेंट, क्या करेगा, एक और पैकेट बनाएगा. एंड इन दैट पर्टिकुलर पैकेट द सोर्स विल बी द होम एजेंट एंड डेस्टिनेशन विल बी द फॉरेन एजेंट. सो वी हैव अ tunneling concept over here. We have a tunnel over here. You can see this dot line is nothing but a tunnel. Okay, so from this tunnel your packets will be traveling from this home agent to the foreign agent. Okay, हो सकता है आपका जो मोबाइल नोड है, इट इज करंटली प्रेजेंट इन दिस एरिया. अब यहाँ से यहाँ मूव हो गया. ठीक है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ मूव होता है, यहाँ से यहाँ मूव होता है, तो इस नेटवर्क का भी, इसके अंदर भी एक फॉरेन एजेंट रहेगा. ठीक है, यहाँ पर एक फॉरेन एजेंट रहेगा और ये आपका फॉरेन नेटवर्क रहेगा. ठीक है, सो उसको वो आपकी जो
टनल है वो टनल आपकी यहाँ से वहां बनने के बजाय यहाँ से यहाँ बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो केयर ऑफ एड्रेस रहेगा वो केयर ऑफ एड्रेस पे आपका 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 पैकेट सेंड होगा। सो योर होम एजेंट विल सेंड द पैकेट टू दिस पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट, ये हमारा फॉरेन एजेंट रहेगा, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट मे बी वी आर हैविंग नंबर ऑफ लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ था, ये हमारा मुंबई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा मुंबई था, ठीक है। अब वो मुंबई से यहाँ पर राजस्थान चला गया, आपका मोबाइल नोड इज नाउ करंटली प्रेजेंट इन द राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अब राजस्थान से मूव हो गया, उसने एक पैकेट भेजा तो राजस्थान में ही था मतलब, ठीक है। और उसके बाद में जब दूसरे दिन पैकेट भेजा तो राजस्थान से शिफ्ट हो गया था, गुजरात चला गया, ठीक है। अभी फिलहाल है गुजरात में। तो ये उसका फॉरेन एजेंट है, ये उसका फॉरेन नेटवर्क है, ठीक है। तो वो आपके पैकेट यहाँ से यहाँ पर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो खिचड़ी बहुत हो गई है इसके अंदर। चलो वापस आते हैं। आपका जो पैकेट यहाँ पे पहुंचेगा, सो आउटर आउटर पैकेट निकालेंगे, जो इनर पैकेट है, जो इनर पैकेट है आपका वो चेक करेंगे। तो अगेन उसमें जो डेस्टिनेशन रहेगा वो आपका रहेगा मोबाइल नोड। सो इट विल बी डिलीवर्ड टू द मोबाइल नोड, ओके, इजीली। एंड देन मोबाइल नोड विल सेंड द रिप्लाई, ओके। so whenever it will send the reply, it will not send the reply to the home agent, okay, it will not send the reply to the home agent, it will send the reply directly to the correspondent node, ठीक है। बिकॉज उसको मालूम है कि मेरा मुझे जो जहाँ से पैकेट आया उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स है सी एन, दैट इज करस्पॉन्डेंट नोड। तो मैं किसी और को क्यों भेजूं, मैं अपना रिप्लाई किसी और को क्यों भेजूं, मैं अपना रिप्लाई डायरेक्ट किसको भेजूंगा, सीएन को भेजूंगा, दैट इज करस्पॉन्डेंट नोड, ठीक है। ये सिनेरियो था हमारा लास्ट तक जो सेशन हुआ उसका, ठीक है। आज हमको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वही हम लोग उतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिकॉज यू नो दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। आईपी पैकेट डिलीवरी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। जितना मैंने आपको ये 2-3 बार समझाया हूँ, तो ये आप लोग को समझ के लिख के आना चाहिए, ठीक है। द डायग्राम इज डैम सिंपल, द डायग्राम इज डैम सिंपल, ओके। ओनली यू नीड टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम, ओके। तो जो मैंने इतना अब बोला हूँ इसके बारे में वही आपको लिखना है विद प्रॉपर वर्डिंग्स, ओके। सो दीज प्रॉपर वर्डिंग्स आर फ्रॉम दिस स्लाइड, ठीक है। ये स्लाइड है, उसके बाद में ये स्लाइड है, उसके बाद में ये स्लाइड है, ठीक है। तो ये सारी स्लाइड के थ्रू आप लोग इजीली यू ऑल कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज आईपी पैकेट डिलीवरी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये हमारा लास्ट तक का था जो हम लोगों ने लास्ट सेशन तक किए थे, ओके। नाउ जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके। एजेंट डिस्कवरी, हाँ, एजेंट डिस्कवरी। अब देखो भाई प्रॉब्लम कैसा है कि whenever mobile node is moving from the home network to the foreign agent, to the foreign network, okay, whenever your mobile node is moving, अब मैं इसको रीड करके नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जस्ट आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो whenever your mobile node is moving from your home location, from your home network, from your home network to the foreign network, ठीक है। जब अपनी जगह छोड़ रहा है किसी और जगह जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये मूव हुआ और चला गया, फॉर एग्जाम्पल चला गया गुजरात, ठीक है। कहीं भी जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो योर मोबाइल नोड हैज नाउ मूव फ्रॉम योर होम लोकेशन, होम नेटवर्क टू द फॉरेन नेटवर्क, एंड दैट फॉरेन नेटवर्क इज करेंटली द गुजरात, ओके। जो नीचे वाला मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है, ओके। अब ऑब्वियसली यहाँ पर भी कोई ना कोई एक फॉरेन एजेंट रहेगा, ठीक है। जो जितने भी ऐसे नए आने वाले जो गेस्ट है, या जितने भी नए आने वाले जो मेहमान हैं, या जितने भी नए आने वाले जो नोड्स हैं, तो वो सारे नोड्स को क्या करेगा, प्रॉपरली गाइड करेगा। बिकॉज एजेंट क्या करते हैं, बेसिकली यही काम करते हैं ना। तो एजेंट क्या करेगा, उनको गाइड करता है। बट उसके पहले सबसे पहला काम होता है आपके मोबाइल नोड को, आपके मोबाइल नोड का जो काम होता है वो होता है कि एजेंट को डिस्कवर करना, एजेंट को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हैं, ठीक है। नाउ वी ऑल आर हैविंग द मोबाइल फोन्स, ओके। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। जब किसी न्यू लोकेशन पे जाते थे, देन वी यूज्ड टू सर्च विद द हेल्प ऑफ द टैक्सी ड्राइवर, द कैब ड्राइवर, ठीक है। भाई ये होटल जाना है, ये लोकेशन पे जाना है, तो हम लोग उससे थोड़ा सा क्या करते थे, तो पूछते थे, ओके। लेकिन आज तो डायरेक्टली, हाँ भाई कहाँ जाना है, तो डायरेक्टली आपका डायरेक्शन आ गया एंड यू कैन मूव टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो आप किसी नई जगह जा रहे हो तो आपको किसी एजेंट की, किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हो, किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जो आप
खुद से घूम नहीं सकते, so you will take the help of a guide. Okay, then guide will help you out for no for that particular location information about that one. ठीक है, it will he will help you out for all the things. Okay, and it will he will charge for that particular thing. So यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं है, बट आपका जो जगह जगह लोकेशन पे आपके फॉरेन एजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो फॉरेन एजेंट हमको पता कैसे चलेगा? हाउ योर मोबाइल नोड विल कम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट, कि ये लोकेशन में मैं जा रहा हूँ, गुजरात के लोकेशन में एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। ओके, सो इफ योर मोबाइल नोड इज मूविंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, ठीक है, तो ये लोकेशन में भाई फॉरेन एजेंट, मैं फॉरेन नेटवर्क में आया हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर होम एजेंट तो होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ कौन रहेगा? यहाँ पर आपका फॉरेन एजेंट रहेगा। ओके, सो फॉरेन एजेंट इज समवेयर, okay, but I don't know, your mobile node is not having any idea about the foreign agent, so what it has to do, it has to discover it. Okay, उसको ढूंढना पड़ेगा, जगह जगह पे उसको ढूंढना पड़ेगा, और जो ढूंढना पड़ेगा वो ढूंढने के दो तरीके हैं, ठीक है, वो ढूंढने के दो मेथड्स हैं। ओके, एंड नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोस टू मेथड। ओके, दिस थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट थोड़ा सा एकदम ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है, और बाकी आप लोग खुद से लिख सकते हो, ठीक है। सो एजेंट डिस्कवरी, ठीक है, और आपके बाद एजेंट फॉर एग्जांपल आपको ना आपका मोबाइल लोड है, ये नए लोकेशन पे गया, नए लोकेशन पे जाके इसको क्या करना है? फॉरेन एजेंट को सर्च करना है, फॉरेन एजेंट को ढूंढना है, फॉरेन एजेंट को डिस्कवर करना है। जब तक डिस्कवर नहीं करेगा तब तक उसको केयर ऑफ एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब तक केयर, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में, बहुत पहले की बात है, मतलब जब उतने मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, आप किसी होटल में गए या आप किसी और मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, तो जाने के बाद में अगर उनके घर पे फ़ोन है, लैंडलाइन वगैरह है या आजू बाजू में, तो अपने किसी, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है तो उसको पहले फ़ोन करके बता देंगे कि दिस इज़ द नंबर, ये केयर ऑफ एड्रेस है, अगर आपको कुछ लगा तो फिर आप जो है ना ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका जो मोबाइल नोड है जब अपने होम लोकेशन से किसी फॉरेन लोकेशन पे यानी फॉरेन नेटवर्क पे जाएगा, तो फॉरेन नेटवर्क पे जाने के बाद में क्या करेगा? वो सर्च करेगा, ठीक है। किसको सर्च करेगा? फॉरेन एजेंट को सर्च करेगा, क्योंकि फॉरेन एजेंट ही उसको केयर ऑफ एड्रेस दे सकता है, ठीक है। एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द केयर ऑफ एड्रेस। ओके, जब तक केयर ऑफ एड्रेस मिलेगा नहीं तब तक के हमारा काम होने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक के केयर ऑफ एड्रेस मिलेगा नहीं तब तक, क्योंकि केयर ऑफ एड्रेस किसका एड्रेस है? आपके फॉरेन एजेंट का है। तो मोबाइल नोड जब इस लोकेशन से फॉरेन नेटवर्क में गया, तो जाने के बाद में सबसे पहले अपने लोकेशन पे किसको सर्च करेगा? फॉरेन एजेंट को सर्च करेगा, ठीक है। तो फॉरेन एजेंट को जब तक सर्च नहीं करेगा तब तक केयर ऑफ एड्रेस मिलेगा नहीं, ठीक है। जैसे ही सर्च कर लिया, मिल गया, तो केयर ऑफ एड्रेस मिल गया, दैट एंड दिस केयर ऑफ एड्रेस विल बी गिवन टू द होम एजेंट ऑल्सो, क्योंकि उसको भी तो पता करना है ना, कि बोलते हैं ना हम लोग, भाई पहुंच जाओ तो एक कॉल कर देना कि हाँ मैं अच्छे से पहुंच गया। तो वैसे ही मोबाइल नोट क्या करेगा? आसपास देखेगा, फॉरेन एजेंट को सर्च करेगा, उसका केयर ऑफ एड्रेस लेगा और लेके अपने होम एजेंट को अपडेट कर देगा कि भाई साहब मैं घर पर, मैं यहाँ पर फॉरेन नेटवर्क में पहुंच गया, फॉरेन एजेंट भी मिल गया, एंड ये उसका एड्रेस है, अगर कुछ बात रहेगी, अगर कोई मैसेज रहेगा मेरे लिए तो मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट करना। ओके तो ये होता है काम आपके एजेंट, मतलब कोई एजेंट को डिस्कवरी का। अब देखते हैं एजेंट डिस्कवरी होती कैसे है, क्योंकि ये एक अलग प्रोसीजर है। दो सिंपल मेथड है। वन इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ एन मोबाइल नोड of a mobile node after moving is how to find a foreign agent. That's a big question for us, that how we can find the foreign agent. देखो फॉरेन एजेंट को डिस्कवर करना है तो इम्पोर्टेंट काम है, तो हम लोग को समझ में आया है, ठीक है। बट हाउ टू फाइंड द फॉरेन एजेंट, दैट इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड हाउ डज द मोबाइल नोड डिस्कवर दैट इट हैज मूव? तो मोबाइल नोड इसको डिस्कवर करे कैसे करे? फॉर दिस पर्पस मोबाइल आईपी डिस्क्राइब टू मेथड, वन इज द एजेंट एडवर्टाइजमेंट एंड एजेंट सॉलिसिटेशन, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू मेथड वी कैन इजीली फाइंड द एजेंट, दैट इज फॉरेन एजेंट, ठीक है। सॉरी। सो विच आर इन फैक्ट राउटर डिस्कवरी मेथड प्लस एक्सटेंशन। तो चलो छोड़ो, तो हमारे पास में दो मेथड है, एक है एजेंट एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है एजेंट सॉलिसिटेशन। तो अब देखते हैं दोनों में होता क्या है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझना है, दोनों का क्या है। ये है एजेंट एडवर्टाइजमेंट और ये है
उसका एजेंट एडवर्टाइजमेंट का पैकेट, और उसके बाद में है एजेंट सॉलिसिटेशन। ओके, ये उसका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट कैसी जाती है, उसका पैकेट है। देन रजिस्ट्रेशन का रिप्लाई कैसा आता है, उसका पैकेट है। और उसके अंदर कौन से कोड होते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक वो टॉपिक है। मतलब आपका जो टॉपिक जो बोला ना मैंने, कौन सा टॉपिक बोला, एजेंट डिस्कवरी। एजेंट डिस्कवरी का जो टॉपिक वो वहां तक है। ठीक है, सो वी हैव टू मेथड, एक तो है एजेंट एडवर्टाइजमेंट और एक है एजेंट सॉलिसिटेशन। देखते हैं पहले मेथड में क्या होता है। So for the first method, foreign agent and home agent advertise their presence periodically using special agent advertisement message। तो इसके अंदर भाई देखो एक्टिव कौन है पहले बताओ मुझे। In the first method, that is agent advertisement। Sorry for the delay। थोड़ा सा काम आ गया था। Okay, so we are having these two method। Everyone is listening or not? Someone please reply। Okay, ठीक है चलो। So we were talking about the agent discovery, okay, how the mobile node will come to know, how your mobile node will come to know about the agent present in the particular area। okay, उस area के अंदर agent present है, how your mobile node will come to know। so for that we have two method, one is the agent advertisement and second is agent solicitation। you need to clear one thing in mind is that in agent advertisement, your agent is going to ब्रॉडकास्ट इटसेल्फ। ओके, तो आपका एजेंट ही सबको बताएगा। ठीक है, एजेंट मतलब क्या करेगा, एजेंट की तरफ से एक्शन है। और एजेंट सॉलिसिटेशन के अंदर आपके जो मोबाइल नोड्स है, तो ये आपका मतलब एक्शन परफॉर्म करेंगे। देखते हैं कैसे। सो फॉर द फर्स्ट मेथड, दैट इज फॉरेन एजेंट एंड होम एजेंट एडवर्टाइज। फॉरेन एजेंट एंड होम एजेंट जो भी है यहाँ वहाँ, तो दे विल एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस periodically मतलब आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में क्या करेगा, एडवर्टाइज करेंगे, अपने आप को एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, यूजिंग बीकन ब्रॉडकास्ट। नीचे मैंने वर्ड लिखा हूँ, अच्छा पहले ऊपर का तो वो कर लेते हैं। एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस पीरियोडिकली यूजिंग स्पेशल एजेंट एडवर्टाइजमेंट मैसेज। ठीक है, सो वी हैव स्पेशल एजेंट एडवर्टाइजमेंट मैसेज का पैकेट। ओके, और वो पैकेट किधर है, वो पैकेट ये है। ठीक है, बेसिकली उसके लिए हम लोग एक आईसीएमपी पैकेट यूज करते हैं। आईसीएमपी आपको पता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। कुछ एरर इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए आप जो पिंग करते हो ना, पिंग पिंग 172.16.1.1 आप जो पिंग करते हो, तो पिंग करने के लिए भी आपका आईसीएमपी पैकेट यूज होता है, बिकॉज दैट इज द वेरी आपका बेसिक वाला एक पैकेट है जो कि यूज होता है। तो आईसीएमपी पैकेट एजेंट एडवर्टाइजमेंट पैकेट जो है ना आपका, वो आईसीएमपी पैकेट होता है प्लस मोबिलिटी एक्सटेंशन। द लोअर पार्ट यू कैन सी ओवर हियर इज दिस इज द मोबिलिटी एक्सटेंशन। मतलब ये इसके लिए बेसिकली इसमें कुछ फील्ड और ऐड की गई है, बाकी तो पुराना वाला वो है। तो ये वाला जो पैकेट है वो क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो जब अपने आप को जब वो अपने आप को बताएंगे कि देखो आई एम प्रेजेंट ओवर हियर, आई एम प्रेजेंट ओवर हियर, तो वो तो व्हाट दे हैव टू डू, दीज एजेंट, दीज राउटर हैज टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने सारे पोर्ट्स के ऊपर, सारी लिंक्स के ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा, अपना एक स्पेशल एजेंट एडवर्टाइजमेंट मैसेज पैकेट उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो भी उस पैकेट को रिसीव करेगा उसको क्या पता चलेगा,
तो फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं, पॉम्पलेट होते हैं, ठीक है, तो पैम्पलेट्स होते हैं, मैं कुछ और सोच लिया, पॉम्पलेट, ठीक है। तो जो पैम्पलेट्स होते हैं, तो पैम्पलेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, या जगह जगह आपने उसको भेज दिया। या फिर अगर आप ब्रॉडकास्ट मैसेज, आप व्हाट्सएप के अंदर ब्रॉडकास्ट मैसेज यूज़ करते हो, सो दैट्स अ सेम टाइप। सो आप ब्रॉडकास्ट करोगे तो जितने कॉन्टैक्ट वाले हैं सबको जाएगा, मैंने कभी किया नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। लेकिन आपका जो ब्रॉडकास्टिंग में जो भी प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में या जो कनेक्टेड है, तो सबको वो मैसेज पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, एजेंट ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आसपास में कोई नया मोबाइल लोड आया हो और उसको हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो क्या करेगा, जब उसको ये मैसेज मिलेगा तो उसके तो चांदी हो जाएगी, अरे भाई मुझे तो मेरा फॉरेन एजेंट मिल गया। उसको फिर कांटेक्ट करेंगे और उससे उसके थ्रू फिर उसका उसका एड्रेस हम अपने होम एजेंट को दे देंगे, ठीक है। सो दीज एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस कैन बी सीन एज द बीकन ब्रॉडकास्ट इनटू द सबनेट, ठीक है। बीकन ब्रॉडकास्ट एक्चुअली एक कुछ कैरेक्टर के फॉर्म में एक ब्रॉडकास्ट होता है। आई हैव रिटन द, एक सेकेंड है, मैं आपको बता देता हूँ। आई वॉज हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑल्सो, आई विल शो यू। What is beacon? As you can see, it's kind of like a lighthouse. It repeatedly transmit a single signal that other devices can see. मतलब क्या कर रहा है, बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इंस्टेड ऑफ एमिटिंग विजिबल लाइट, तो इट ब्रॉडकास्ट अ रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, दैट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, इंपॉर्टेंट ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स ट्रांसमिटेड ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो 1/10 के पीरियड के अंदर वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर को ट्रांसमिट करता है। तो ये जो मैसेज होता है, और वो भी रेडियो सिग्नल के फॉर्म में, तो ये होता है बीकन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली वो क्यों कर रहा है, ताकि वो अपने आसपास में जितने भी नोड्स घूम रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही इस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट को देखेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो देखेंगे। जैसे हम लोग पैम्पलेट बांटते हैं, तो पैम्पलेट बांट दिया आपने, बाद में लोग आते हैं फिर, या आपका रेस्टोरेंट का है या फिर आपका कोई दूसरी और शॉप है, तो वो पैम्पलेट लेके फिर बराबर एड्रेस पे पहुंचेंगे। तो आप वैसे ही आपका जो मोबाइल लोड है, इट वाज रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेन नेटवर्क, बट जब ये ब्रॉडकास्ट देखेगा तो ब्रॉडकास्ट देख के आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट वाला, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट एडवर्टाइजमेंट, ओके। एजेंट एडवर्टाइजमेंट में फर्स्ट वाला कौन सा है, हाँ नहीं मतलब एजेंट डिस्कवरी में आपका फर्स्ट वाला है एजेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जरा देख लेते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ गया है, एजेंट खुद ब्रॉडकास्ट कर रहा है अपने आप को, एजेंट खुद अपने आप की पब्लिसिटी कर रहा है कि देखो भाई मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। सो ईच एंड एवरी मोबाइल नोड विल कम टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन एजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो ऑल एजेंट विल अट्रैक्ट टू the foreign agent present who is broadcasting itself. So for these advertisement, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल आईसीएमपी पैकेट यूज होता है इसके लिए, अकॉर्डिंग टू द आरएफसी। एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, RFC 1256, ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो इन दीज डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड, ओके, उसमें रेफरेंस के साथ में होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट RFC 1256 आईसीएमपी पैकेट यूज होता है इस ब्रॉडकास्ट मैसेज के अंदर, प्लस सम मोबिलिटी एक्सटेंशन, कुछ उसमें और फील्ड भी होती है मोबिलिटी के लिए। Routers in the fixed network implementing this standard also advertise their routing service periodically to the attached link. तो बेसिकली यहाँ पर आपका क्या होता है कि अगर कोई फिक्स नेटवर्क है, ये तो हम लोग ने किसकी बात की है, ये तो हम लोग ने उसकी बात की है, वायरलेस नेटवर्क की बात की। अगर कोई वायर्ड नेटवर्क भी है तो वो भी क्या करेगा, अपने जो भी लिंक्स कनेक्टेड है तो वहां पर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा पीरियोडिकली। द वर्ड मतलब यू नीड टू कीप इन माइंड दिस वर्ड पीरियोडिकली, ठीक है। वाई पीरियोडिकली, सो क्योंकि थोड़ा सा इंटरवल टाइम के बाद में करेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ फिर आपने आपको ब्रॉडकास्ट किया। अच्छा, उसके इमीडिएटली बाद अगर कोई मोबाइल नोड अगर आया, उसके इमीडिएटली बाद अगर कोई मोबाइल नोड अगर आया, तो वो तो बेचारा वो हो गया ना, मतलब उसको पता ही नहीं अभी। तो आप क्या करेगा, जो नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट करेगा उसमें फिर आपके मोबाइल जो अपकमिंग नया मोबाइल नोड है उसको पता चलेगा, ठीक है। सो दे विल एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस periodically using special message, okay, and the special message जो broadcast message है वो होता है beacon broadcast, okay, in that particular network, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को?
समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है चलो, गुड। द थिंग्स आर वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट आर वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई भी इसके अंदर दुविधा बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। और मैं ये बोल रहा हूँ ना, एजेंट डिस्कवरी, एजेंट एडवर्टाइजमेंट, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, आते हैं एग्जाम के अंदर, इसके लिए इसको अच्छे से पर काम खाली आपका लिखना है, ठीक है, सही से आपको लिखना है एक बार रीड करके, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये उसका मैसेज पैकेट, हम लोग ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, थोड़ा सा आप खाली मैसेज पैकेट देख लो, ये एडवर्टाइजमेंट पैकेट है। तो टोटल टोटल कितने बिट का होता है? 32 बिट का पैकेट है आपका, ठीक है। उसमें आपका देखो ये 0 to 7 मतलब 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट। उसमें आपका जो टाइप होता है वो 8 बिट का होता है, कोड 8 बिट का होता है। जो चेकसम होता है, आपको पता है चेकसम क्या होता है? जो भी आपके अंदर मैसेज है, उस मैसेज का चेकसम निकालते हैं और उस पर्टिकुलर पैकेट में डाल के उधर भेजते हैं। जब रिसीवर रिसीव करता है तो वो भी क्या करेगा, उस डेटा का चेकसम निकालेगा, ठीक है। और दोनों चेकसम अगर मैच करेंगे तभी जाके वो डेटा को, उस पैकेट को रिसीव करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए चेकसम, दैट्स अ एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, ओके। उसके बाद में फिर एड्रेसेस है, इसके अंदर एड्रेसेस है, और फिर एड्रेस साइज है, लाइफ टाइम, ये पैकेट कब तक वैलिड रहेगा, ऐसे राउटर एड्रेस वन, प्रेफरेंस लेवल, तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली। तो टोटल 32 बिट्स का होता है ये आपका एडवर्टाइजमेंट पैकेट, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की इसकी ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को। नाउ द सेकंड इज द एजेंट सॉलिसिटेशन। देखो पहला मेथड, how your agent will how the mobile node will come to know about the presence of the agent in the particular subnet or in the particular area, ठीक है। तो पहला मेथड तो we have already seen, that is agent advertisement, agent अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, फर्स्ट मेथड, ठीक है। in the second method, that is agent solicitation, okay, I have written very in a very tiny word, trying to obtain something from someone, trying to obtain something from, the solicitation means trying to obtain something from someone, यानी कि अगर इसको, अगर किसी को किसी से कुछ लेना है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब बोले ना, सॉलिसाइट कर रहा है, सॉलिसिटेशन, द प्रोसेस इज सॉलिसिटेशन। तो चलो उसको देखते हैं कैसे करें। अच्छा यहाँ पर अभी, यहाँ पर हमको किसको किससे क्या चाहिए, आप खुद सोचो अभी, किसको किससे क्या चाहिए? मोबाइल नोट को फॉरेन एजेंट से केयर ऑफ एड्रेस, मोबाइल नोट को फॉरेन एजेंट से केयर ऑफ एड्रेस चाहिए, ठीक है। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। मतलब यहाँ पर एक्शन कौन करेगा, यहाँ पर एक्शन आपका मोबाइल नोट करेगा। आपका मोबाइल नोड आपके फॉरेन एजेंट के पीछे लग के, यानी पहले तो ढूंढेगा, उसके बाद में फिर जब मिलेंगे तो उसके बाद में उनसे केयर ऑफ एड्रेस लेगा, ठीक है। तो एजेंट का सॉलिसिटेशन यहाँ पर, मतलब एजेंट का सॉलिसिटेशन मतलब एजेंट से क्या करेगा, आपका मोबाइल नोट क्या करेगा, रिसीव करेगा। इफ नो एजेंट एडवर्टाइजमेंट आर प्रेजेंट, ठीक है, चलो एजेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ या हो गया और यहाँ पर वो नहीं था, मतलब उस टाइम पे मोबाइल नोट प्रेजेंट नहीं था। if no agent advertisement are present and mobile node has not received the care of address by other means, ठीक है। तो बेसिकली हमारे मोबाइल नोड को क्या मिलना चाहिए, केयर ऑफ एड्रेस। उसको क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, वैसे हमारे मोबाइल नोड को क्या चाहिए, हमारे मोबाइल नोड को चाहिए सिर्फ और सिर्फ केयर ऑफ एड्रेस, ताकि उस केयर ऑफ एड्रेस को वो अपने होम एजेंट को दे सके, ताकि उसके जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपका होम एजेंट क्या करेगा, आपको फॉरवर्ड करते जाएगा, इसके लिए आपको केयर ऑफ एड्रेस चाहिए, राइट। So the mobile node must send agent solicitation, आपका मोबाइल नोड मस्ट सेंड एजेंट सॉलिसिटेशन, एजेंट से एक्वायर करना है हमको, इसके लिए मोबाइल नोड भेजेगा, ठीक है। These solicitations are again based on RFC 1256 for router solicitation। तो ये बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, ठीक है। Care must be taken to ensure that these solicitation messages do not flood the network। अब इसके अंदर मोबाइल नोड क्या करेगा, मोबाइल नोड क्या करेगा, अपने मैसेज भेजेगा। अब जरूरी नहीं, देखो जस्ट इमेजिन at the same situation at any moment of time in the particular foreign network, at any moment of time in a foreign agent there may be number of mobile nodes which are present, okay। अब जो मैंने आपको बताया डायग्राम, तो डायग्राम में खाली एक मोबाइल नोड प्रेजेंट है, जो राइट साइड में मैंने बताया था आप लोग को। इन दिस डायग्राम यू कैन सी ओनली वन मोबाइल नोड इज प्रेजेंट, ओके। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पर
कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोबाइल नोड्स आप मे बी प्रेजेंट इन द फॉरेन नेटवर्क, ठीक है। जरूरी नहीं, फॉर एग्जांपल आई एम इन पनवेल राइट नाउ, ठीक है। मैं यहाँ कुछ काम से खारगर गया हूँ, मैं कुछ काम से आपके मुंबई गया हूँ, ठीक है। तो हो सकता है अलग अलग थाने से, पनवेल से, अलीबाग से, कल्याण से, भिवंडी से, अलग जगह से लोग मुंबई आए हो, ठीक है। हो सकता है अलग अलग लोकेशन से लोग जो है मुंबई आए हुए, मतलब कि वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितने सारे मोबाइल नोड हो गए, बहुत सारे मोबाइल नोड हो गए, ठीक है। तो ओके, so care must be taken to ensure that these solicitation messages do not flood the network। अब इतने सारे अगर आपके मोबाइल नोड वहाँ प्रेजेंट है, तो जब एजेंट एजेंट को सॉलिसाइट करेंगे, जब एजेंट से कुछ मांगेंगे उन लोग कि भाई हमको केयर ऑफ एड्रेस दो, हमको केयर ऑफ एड्रेस दो, तो जब इतने सारे मोबाइल नोड जब वो मैसेजेस अगर सेंड करेंगे, तो उससे हमारा नेटवर्क फ्लड नहीं होना चाहिए, हमारा नेटवर्क जैम नहीं होना चाहिए। बट बेसिकली मोबाइल नोड कैन सर्च फॉर फॉरेन एजेंट, your your mobile node can search for the foreign agent endlessly sending out solicitation messages। अच्छा, ये तो खाली बस आउटलाइन बता दिया आप लोग को, क्या सॉलिसिटेशन मैसेजेस कौन भेजेगा? इट विल बी सेंड बाय द मोबाइल नोड, ओके, इट विल बी सेंड बाय द मोबाइल नोड। सो टिपिकली अ मोबाइल नोड कैन सेंड आउट 3 सॉलिसिटेशन 1 per second एज soon as it enters a new network। आपका नया नया बंदा, नया नया मोबाइल नोड नए फॉरेन नेटवर्क में एंटर हुआ, जैसे मैं हूँ खारघर का रहने वाला, मैं चला गया आपके वीटी चला गया, नहीं मुंबई चला गया, ठीक है। अब जैसे मैं न्यू नेटवर्क के अंदर जब मैं एंटर हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द एजेंट सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट RFC 1256, वो क्या करेगा, 1 सेकंड में एक मैसेज सेंड करेगा, ऐसे 3 सॉलिसिटेशन मैसेज वो सेंड करेगा, ठीक है। If a node does not receive an answer to its solicitation, it must decrease the rate of the solicitation। अब आप बोलेंगे तो इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज क्यों कर रहा है? तो ये इंक्रीज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इससे आपका नेटवर्क फ्लड होने का, मतलब उसमें फ्लडेड होने का खतरा होता है। अब ऐसे आपको बताया ना मैंने, हाउ मेनी मोबाइल नोड्स कैन बी प्रेजेंट, ओके, हाउ मेनी मोबाइल नंबर ऑफ मोबाइल नोड्स may be present in that particular area, as I told you the example, I'm from Khagar, someone from Kalyan, Thane, Bhiwandi, okay, many people from different locations are arriving in the Mumbai for some work, okay। तो अगर एक जगह पे हम लोग पहुंच गए, स्टेशन पे खड़े, रेलवे स्टेशन पे खड़े, तो फिर कितना प्रॉब्लम होगा बोलो। एक जन अगर 3 3 मैसेजेस अगर भेजते जाएगा, और ऐसे बहुत सारे हजारों लोग, अगर हजारों आपके मोबाइल नोड अगर ऐसे मैसेज भेजेंगे, तो आपका नेटवर्क फ्लड होने का खतरा होता है, ठीक है। तो उनका मेथड क्या है, योर मोबाइल नोड कैन सेंड आउट 3 सॉलिसिटेशन मैसेज, ठीक है, 1 सेकंड में एक भेजेंगे, तो 3 भेजेंगे एज सुन एज इट एंटर्स अ न्यू नेटवर्क, जब कोई न्यू नेटवर्क में गया तो। इफ अ नोड डज नॉट रिसीव एन आंसर to its solicitation, it must decrease the rate of solicitation exponentially to avoid flooding the network। कम करेगा, ठीक है। मतलब एक मेथड है, आप मतलब जब भी मोबाइल नोड किसी न्यू एरिया में जाएगा, तो वो एजेंट सॉलिसिटेशन मैसेजेस भेजेगा, किसको भेजेगा? एजेंट को, ऑब्वियसली एजेंट को भेजेगा, ठीक है। तो वो अपने मैसेज भेजेगा, और जो आसपास जो एजेंट रहेंगे जैसे रिसीव करेंगे तो उनसे फिर कांटेक्ट कर लेंगे, ओके। सो डिस्कवरिंग अ न्यू एजेंट कैन बी डन एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम, इट कैन बी डन एनी टाइम, नॉट जस्ट इफ द मोबाइल नोड इज नॉट कनेक्टेड टू वन, ठीक है। तो इट कैन बी डन एट एनी टाइम, एंड आफ्टर दीज स्टेप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सॉलिसिटेशन, द मोबाइल नोड कैन नाउ रिसीव अ COA। अच्छा, आपका मोबाइल नोड न्यू लोकेशन में गया, उसने सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा, पहला भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक मैसेज आपके एजेंट को मिल गया जो आसपास में था, ठीक है। अब जब आपका जब एजेंट विल रिसीव दैट पर्टिकुलर सॉलिसिटेशन मैसेज, तो इट विल टेक, अच्छा तो आप कहाँ से आए हो? अच्छा, आप थाने सिटी से आए हो, ओके ठीक है, चलो आपका बता दो कहाँ पर हो, आप कहाँ रह रहे हो, कौन सी होटल में? अच्छा, होटल प्लाजो में रह रहे हो, ठीक है, आपके एड्रेस सब ले लिया अपने पास में। और तो फिर आपका मोबाइल नोट पूछेगा उसको, भाई आपका केयर ऑफ एड्रेस दे दो, ताकि मैं अपने होम एजेंट को बता दूँ, अपने पेरेंट्स को बता दूँ मैं कि मैं सक्सेसफुली मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ अच्छे से, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है, फिर वो एजेंट आपको क्या देगा? आपको केयर ऑफ एड्रेस देगा, ठीक है। एजेंट क्या देगा आप लोग को? आपको केयर ऑफ एड्रेस देगा, एंड दैट केयर ऑफ एड्रेस विल बी शेयर्ड विद दैट पर्टिकुलर होम एजेंट, ठीक है। उस होम एजेंट के साथ में आप क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। सो ये आप जो मोबाइल नोड यहाँ पर थे, तो
आपको मिल गया फॉरेन एजेंट का एड्रेस ले लिया आपने और ये एड्रेस शेयर हो गया होम एजेंट को। अब होम एजेंट के पास जो भी मैसेजेस आएंगे कहीं और से, कहीं से भी मैसेज आए तो वो कहाँ फॉरवर्ड करेगा, वो प्रॉपरली यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना काम है, लिखना आप लोग अपने हिसाब से कैसा अच्छे से लिख सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर गुड इन राइटिंग। ठीक है, तो एक दो अगर आप लोग को पॉइंट्स मिल जाए तो यू कैन इजीली राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप you have understood this topic. The last point, the mobile node knows its location, home network or foreign network and the capabilities of the agent. So ये तो यहाँ तक तो खाली बस दो मेथड हुए हैं। ठीक है, अभी पूरा प्रोसीजर बाकी है। ये प्रोसीजर होता है स्टार्ट यहाँ से, दैट इज रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन है, तो ये हम लोग खैर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ। तो जब आपका मोबाइल नोड किसी नए लोकेशन में जाएगा, ठीक है, तो उसको ये प्रोसेस करना पड़ता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन के अंदर उसका मतलब फ्लो कैसा होता है, एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट क्या होती है, जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। I hope you have understood these two method of agent discovery, that is agent advertisement and agent solicitation. In agent advertisement, the agent itself advertise its presence in the particular subnet in the particular network. ठीक है, एजेंट अपने आप को क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एडवर्टाइजमेंट पैकेट। ओके, एंड द स्पेशल एडवर्टाइजमेंट पैकेट इज दिस वन। ठीक है, बहुत स्लो आ रहा है, स्लो मूव हो रहा है, मैं यहाँ पर कब से शो कर दी हूँ लेकिन अब आया। ठीक है, सो एजेंट एडवर्टाइजमेंट ऐसे होगा। उसके बाद में एजेंट सॉलिसिटेशन है। इन एजेंट सॉलिसिटेशन हमको मैंने के मोबाइल नोड को एजेंट से उगलवाना होता है। ठीक है, तो ये है आपका मतलब सिंपल, जस्ट यू कैन रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। ओके, आपके समझने के लिए। एजेंट एडवर्टाइजमेंट, एजेंट अपने आप को सबको एडवर्टाइज करेगा। एजेंट सॉलिसिटेशन, एजेंट से हमको निकलवाना है। ठीक है, एजेंट से हमको क्या निकलवाना है, केयर ऑफ एड्रेस निकलवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैसेज कौन भेजेगा, आपका मोबाइल नोड भेजेगा। फर्स्ट वाले में मैसेज कौन भेजेगा, आपका एजेंट भेजेगा। दोनों में देखो मेथड अलग अलग है, ध्यान से। ओके, so thank you for today's session and और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, next topic we'll see in the next session, that is registration, reply वगैरह सब कुछ।